राहें ऐसी है जिनकी मंजिल ही नहीं, पर मैं उनमें खोया हूँ कहीं। जो सपना मैंने देखा था कभी, वो पूरा होने का नाम लेगा तो कभी। जिस पथ में है सफलता की कमी, उस पथ में ढूंढता हूँ सफलता की छवि। दिल टूट के कहता है अभी, रुक जा और दूसरा पथ देख तू तो अभी। मन है कि मानता ही नहीं, कुछ और पथ पर जाने की इजाजत देता ही नहीं। बुद्धि के कहने से ही सही, कोशिश करने का जुनून मुझ में है सही। आज नकुल विश में हूँ सही, परंतु जेंटलमैन कैडेट नकुल विश में बनूंगा तो कभी। जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे, वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेज। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंस्पिरेशनल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में नकुल बिष्ट जो रिसेंटली रिकमेंड हुए हैं फॉर IMA थ्रू CDS 1 2022 एंट्री हैज़ शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ एंटायर जर्नी टुवर्ड्स रिकमेंडेशन। नकुल रिकमेंड हुए अपने 6th अटैम्प्ट में आफ्टर हिज 3 times NDA out and 2 times TES out. Actually, he got 3 times conference out or not recommended and 2 times screened out. And his final attempt, that is 6th attempt, he finally made it, and it was his first attempt of CDS. He is a true inspirational for every aspirant from every aspect. क्योंकि नकुल ने just after his 12th, when he was getting not recommended for the entries of TES and NDA, he had made in mind that he has to like work in his loopholes. First he started understanding कि भाई मैं out क्यों हो रहा था. He was not like other candidates जो excuse बनाते हैं कि भाई मुझे पता नहीं क्यों नहीं लिया. He was something like कि भाई yes, I might be having some weak areas, I might have committed some of the like mistakes over there, तो उन पर work करना है. And he started figuring it out. He figured out maximum of the things and he started working on the loopholes, working on the weak areas in his college, and he utilized his college life in the best way possible. He explored in the best way possible. He did everything whatever he was aspiring towards, and finally he cleared the written examination of CDS 1 2022 and उन्होंने टारगेट डिफेंस फोर्सेज डेली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1 हिमांशु पांडे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था लास्ट CDS में, जो अभी IMA में ही इज़ गेटिंग ट्रेंड ओवर दैट. एक्चुअली हिमांशु इज़ नेबर ऑफ नकुल, और तो नकुल को पता चला टारगेट डिफेंस फोर्सेस के बारे में थ्रू हिमांशु पांडे, एंड ही इमीडिएटली जॉइंड, एंड फॉर द पास्ट 1.5 month he was regular towards the group, towards every activity. He was regular towards the lectures, regular towards the news, regular towards the group discussions. He was well acquainted with data, facts and figure, and regular PP and DD sessions helped him out to get recommended. Multiple interviews भी लिए नकुल के, like multiple psych assessment tests भी थे, and throughout he was regular and he was committed to get recommended. And finally he proved that consistent hard work in a right direction pays off definitely, and he is the real example of that. इस वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. अगर आप भी अपने पुराने अटैम्प्ट्स में फेल हुए हैं, नहीं हो पाए रिकमेंड, या आपकी आने वाली SSB है, कोई आने वाले मंथ्स में आपकी कोई SSB है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड ट्राई टू फिगर आउट द थिंग्स एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द वीडियो एंड ट्राई टू इनकलकेट द क्वालिटीज़ दैट यू आर मिसिंग राइट नाउ. So must watch the video till the end. You will surely get benefited. अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए and also press the bell icon to get updated. And if you are also a serious defense aspirant and want to be the part of daily practice sessions of Target Defense Forces, so you can also get yourself enrolled by providing your details in the given WhatsApp number. Rest I'll take care of. So here comes the experience of Nakul. Must watch till the end. Hello ladies and gentlemen, this side Nakul Vish. A brief introduction about myself. I had done my schooling from Beersheba Senior Secondary School over there in Haldwani. I am basically from Haldwani, Nainital, Uttarakhand, and I had done my graduation from Ramjas College, Delhi University.
and with above average marks in class 12th as well as in graduation. And coming to my other background, like I had learned my French language from Delhi University only, and I had done my French language course from over there. And along with that, I was a good participant over there in mountaineering as well as skiing. I had done my mountaineering course from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, and basic skiing course from Pandit Nansing Sarwar Mountaineering Institute in Munchiari and Oli, Uttarakhand. So coming to the journey of this defense forces, so my journey to defense forces started long back in 2019, in June 2019, when I was having my technical entry scheme SSB. Actually, I was not able to qualify my NDA written exam in my first attempt, but later on second and third attempt I was able to qualify my NDA 10 also. And in my technical entry scheme, of which I was talking, I got conference out on 20 June, and on that day I got conference out from 14 SSB Allahabad. Then I again prepared for NDA examination, I qualified it, and then on 26th February I got conference out from 17 SSB Bangalore, after which I got two times screen out from technical entry scheme from Kapurthala and Bhopal. And then again on 26th December I got conference out from 20 SSB Bhopal of that year only, means 2020. So basically ये मेरा एक छोटा सा स्पैन था पास्ट के अटेम्प्ट्स का, एंड दिस वाज माय फर्स्ट ग्रेजुएशन एंट्री अटेम्प्ट. तो मैंने मतलब जब मैं लास्ट कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, इससे पहले मतलब जब मैं रिकमेंड होने से पहले कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था 26 दिसंबर को, तो मैंने ये सोच लिया था कि मेरे अंदर वो कमियां हैं जो डिफेंस फोर्सेस को नहीं चाहिए. तो मैंने उन कमियों को एनालाइज किया कि वो क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि एक कमी के बेसिस पे कभी मेरे को कोई भी बंदा रिकमेंड या नॉन रिकमेंड नहीं करेगा. तो मैंने वो सेटअप, मेरी जो वीकनेसेस थी जहाँ पे मैं लैक कर रहा था, वो मैंने मतलब नोट डाउन करी, जॉट डाउन करा, और उन सब में वर्क करना स्टार्ट किया. तो बेसिकली मतलब मेरी जो क्लास 12 तक कमी थी, या क्लास 12 के अटेम्प्ट में जो कमी थी, दैट वाज नॉट, आई वाज नॉट हैविंग एक्सपोजर ऑफ अदर एरिया देन स्टडीज़. लाइक आई वाज गुड स्टूडियस इन माय स्कूल लाइफ एज वेल एज माय कॉलेज लाइफ. But along with these things in my college life, I started participating in extracurricular activities. I participated in various fest organizing activities of my college. I participated in various courses of mountaineering and skiing and adventures, and I did short tracks. I participated in marathon, half marathon, and even I win that thing also. तो ये ऐसे सिलसिला चलता रहा, और मैं अपनी पर्सनैलिटी को इस बीच में ग्रूम करता रहा. तो मैं यही पूछता था कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा बना सकते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें करी मैंने अपनी लाइफ में, और मैंने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा मतलब ग्रूम किया अपनी कॉलेज लाइफ को जीते हुए. सो व्हाट आई डिड वाज आई wholeheartedly live my college life along with everything. I did everything in my college life, whether it be hookah, whether it be anything, whether it be studies, whether it be means I was very punctual with my studies along with other activities also. I was keen participant in means reading newspaper, in my society activities, and I was having decent marks, about 80% marks I was having in my graduation, which is मतलब थोड़ा वर्क करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए. तो इसके साथ मैंने काफ़ी और चीज़ें भी एक्टिविटीज़ परस्यू करी थी, जैसे कि मैंने बताया मैंने फ्रेंच लैंग्वेज भी, उसमें मेरा अच्छा ग्रेड था, और माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, सब में मेरे अल्फ़ा ग्रेड्स थे. तो ये सारी चीज़ें करी मैंने. उसके साथ साथ मैं अपनी करंट पॉलिटिक्स, मतलब जियो पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों में भी नज़र रखता था. न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, और रीडिंग नॉवेल्स, मतलब नॉवेल्स मैं काफ़ी रीड करता था. उसके साथ मैं साइकिलिंग करता था, रनिंग करता था, स्विमिंग करता था. तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहता था अपनी लाइफ में. और रनिंग के इवेंट्स में मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता था, जो मुझे मेरी लिमिट्स पुश करने का मौका देती थी, और अपने आप को पहचानने का भी मौका देती थी. क्योंकि एसएसबी आपसे दैट इज़ ओनली द डिमांड ऑफ एसएसबी, दैट यू नो अबाउट योरसेल्फ, हाउ मच यू नो अबाउट योरसेल्फ. तो जितना आपको अपने बारे में पता होगा, जितना आपको अपनी अच्छाई और अपनी कमियां पता होंगी, देन ओनली यू कैन वर्क अपॉन दैट थिंग. एंड दैट आई रियलाइजेज आफ्टर माई दीज ऑल अटेम्प्ट्स. मीन्स ये तो मेरे को बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था, लेकिन वर्क करना मैंने तब स्टार्ट किया. तब तक मैं केवल एसएसबी का ही प्रिपेयर कर रहा था. फिर मैंने, जब मेरी लास्ट एसएसबी थी, जब मैं मतलब मेरे पास 1.5 साल का जो एक चंक था, उसमें मैंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना पड़ा, मतलब पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना चाहा, और मैंने किया. तो बेसिकली ऐसे इस तरीके से मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया, और मतलब यही सारी एक्टिविटीज़ मैंने करी. बाकी फिर मैं अपने रिटन अटैम्प्ट्स में मैंने बहुत अच्छे से मतलब प्रिपेयर किया सारे रिटन अटैम्प्ट्स के लिए. मैं हर चीज़ को एक पॉजिटिव इंस्पेक्ट लेके चलता था कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मीन्स एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीजन. दैट्स व्हाट माई इंस्टिंक्ट वाज, एंड आई ऑलवेज फॉलो माई इंस्टिंक्ट फीलिंग कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग देन देयर शुड बी समथिंग गुड ओवर देयर. मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे का एक रीज़न मेरे को पता होना चाहिए, और उसके मतलब मेरे को प्रॉज एंड कॉन्स और उसके प्रिकॉशंस और उसके मतलब जो भी मेरी एडवाइजरी बॉडी है मुझे पता होनी चाहिए. तो यही चीज़ मैं फॉलो करता था, और मैं यही चीज़ मतलब किसको भी मेरे से पूछता हूँ, मैं उसको यही फॉलो करने को बोलता हूँ. तो ये सब चीज़ें मैंने करी.
बाकी फिर मैंने जब अपना रिटर्न अटैम्प्ट दे दिया था तो मेरे को पता था कि मेरा रिटर्न अटैम्प्ट निकल जाएगा। पहले तो रिटर्न अटैम्प्ट निकालना काफ़ी मतलब अच्छी बात है, अगर आप CDS का रिटर्न अटैम्प्ट निकाल रहे हैं देन इट्स वेरी गुड। तो बाकी फिर मतलब एक स्टेज आपकी क्रॉस हो गई है, बाकी और स्टेज आपका इंतजार कर रही है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने लग जाइए, वही जो मैंने किया था बेसिकली वही मतलब मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा। और मेरा जो इंटरव्यू था इट वाज गुड, मतलब दिस टाइम आई वाज हैविंग पॉजिटिव फीलिंग कि मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। कि मेरा साइक टेस्ट भी मेरा पर्सनैलिटी के ऊपर था, मेरा IQ से काफ़ी रिलेशन था, क्योंकि जो चीज़ मेरी PIQ में थी वही मेरी साइक में थी, वही मेरे साइक के टैट वैट SRT SD सब जगह वही चीज़ नज़र के आ रही थी। और वही मेरा इंटरव्यू चला था, वही मेरा GTO में भी मेरे से मतलब जो इंटरेक्शन मेरा सर के साथ हुआ या जो भी उन्होंने मेरे से ऑब्जर्व किया, होप सो कि उन्होंने वही चीज़ें ऑब्जर्व करी कि मैं वही चीज़ें पोर्ट्रे करना चाह रहा था जैसा मैं सेल्फ हूँ। तो मैंने इस बार अपने आप को सेल्फ रिलायबल मतलब सेल्फ ही दिखाया। और इसके साथ साथ मैं भी एक चीज़ छोटा सा भूल गया कि मतलब मैंने ना इंडिपेंडेंट होना सीखा। मैं 2020 से छोटे मतलब इंटर्नशिप्स करता था, मैं अर्न करता था अपने मनी, ताकि मैं खुद एक रिस्पॉन्सिबल बन पाऊँ, खुद मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल पाऊँ। तो उस चीज़ के लिए मैंने स्टार्ट किया ऐसे ऐसे करके, मतलब मैंने इंटर्नशिप्स करी, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने स्टूडेंट्स टीच करे, मैंने एनालिस्ट की इंटर्नशिप्स करी, मैंने डेटा एनालिस्ट करा, मतलब ये इंटर्नशिप करी मैंने। और मैंने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, QC एनालिस्ट, क्वालिटी चेक एनालिस्ट, मैंने डाउटनट, फिजिक्स वाला, वेदांतु, सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स में इवन वर्क किया इतने स्पैन में, मतलब 2 साल मैंने लगभग काम किया इन सब के साथ। और मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको केवल एक मतलब पैसा ही नहीं देती, ये सब चीज़ें आपको सिखाती है कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। मेरे को अभी भी याद है, मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में मेरे को रात के 2 बज जाते थे और मेरे टास्क पूरे नहीं हुए रहते थे। तो वो रात को 2 बजे से केवल 7 बजे तक सोना है, उसके बाद 7 बजे मेरे को कॉलेज अटेंड करना है, प्रैक्टिकल अटेंड करने हैं, प्रैक्टिकल में भी अच्छा करना है, और उसके बाद ये मेरा मतलब एक वो रहता था। उसके बाद मतलब सब चीज़ें करनी है लाइफ में। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर लर्निंग स्किल्स थोड़ी अच्छी रही, और बाकी सभी का सपोर्ट रहा। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर लर्निंग स्किल्स है ना, कुछ सीखने की चाह है, देन श्योरली यू विल लर्न दैट थिंग, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इन SSB। और अपने आप को सेल्फ पोर्ट्रे करिए, ये एक बेटर ऑप्शन है। और बाकी ये मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था, मतलब मेरे इंटरव्यू में मेरे से रिगार्डिंग ही बातें हुई थी। और मेरे इंटरव्यू मतलब मेरे से रिगार्डिंग, और एक बहुत अच्छा सा मतलब पॉजिटिव पार्ट था मेरे इंटरव्यू का। लाइक मेरे इंटरव्यू में मेरे से पूछा कि आपको क्या चीज़ है जो आपको मतलब आप चाहोगे कि आपसे नहीं पूछी जाए इस इंटरव्यू में। तो आई सेड दैट सर जियो पॉलिटिक्स विल बी द वन। तो फिर उन्होंने मेरे से ना जियो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए बैक टू बैक 3, मतलब उसमें से एक तो बांग्लादेश से रिलेटेड था कि बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड पोर्ट, चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना स्नेक, चिकन स्नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था। मतलब साउथ चाइना सी को कवर करना था मेरे को इसमें। तो वो मेरे को मतलब एनालिसिस में रखता था अपने पास, मतलब मेरे पॉजिटिव मतलब मेरे पॉइंट्स रहते थे कि क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो वही मैंने उनको पोर्ट्रे करा, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता था तो एक आइडिया जनरेट हो जाता है कि कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में। तो मैंने वही वो आइडिया पोर्ट्रे किया। थोड़े फैक्ट्स दिए कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सर 40% से ज़्यादा ट्रेड पास हो रहा है, तो हमें मतलब हमें भी अपना इन्फ्लुएंस रखना है उस एरिया में और हम ऐसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैंने रखी थी स्ट्रेटेजी। और फिर मतलब उन्होंने मेरे से अफगानिस्तान के बारे में पूछा, टेररिज्म के बारे में पूछा, 1965 वॉर के बारे में पूछा। तो ये थोड़ा बहुत चला। और मतलब जियो पॉलिटिक्स में मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे। फिर मेरे से उन्होंने अजरबैजान, अर्मेनिया भी पूछा, सेंट्रल एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स भी पूछा। लेकिन मैं मतलब मोर और लेस सभी को आंसर कर रहा था, और इवन विद फैक्ट्स। मतलब लाइक अजरबैजान, अर्मेनिया का पूछा, सेंट्रल एशिया का पूछा, तो सेंट्रल एशिया मैंने तापी प्रोजेक्ट मेंशन किया था। फिर उन्होंने मेरे से तापी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। तो मेरा इंटरव्यू मतलब जियो पॉलिटिक्स मुझे पता है मतलब कि क्या चल रहा है, बट इतना अच्छे से नहीं पता जितना कि UPSC में मेंस में मैं लिख पाऊँ। ये मैंने उनको बोला भी था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वी वांट दैट पर्सन हु हैव हिज आइडिया। तो यही मैंने अपनी अप्रोच रखी थी और मैं यही अप्रोच रखता हूँ। तो ये मेरी इस बार अप्रोच रही थी कि मैं अपने आप को पोर्ट्रे करूँ, अपने मतलब पर्सनैलिटी को ग्रूम करके लेके जाऊँ उस हद तक कि मतलब मैं अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे कर सकूँ। और मतलब मैं मतलब काफ़ी जैसे GTO के टास्क में भी आप मतलब मैं कम पॉइंट्स देता था, 4-5 पॉइंट्स देता था। पहले GD में तो मैंने बहुत पॉइंट्स दिए थे, खैर वो काफ़ी रिलेटेबल सा GD था। और मतलब दूसरी पॉइंट पे मेरे को पता नहीं था कि मूनलाइटिंग क्या होता है, बट मेरे को मतलब उधर पे पता लग गया था कि इनकम से रिलेट मतलब सर ने जो वो देते जहाँ मतलब जो पॉइंट्स देते कि इसमें आप कौन सा पॉइंट्स चूज़ करेंगे, तो उसमें मैंने इनकम चूज़ किया था। तो मैं काफ़ी फैक्ट्स दे रहा था ग्रुप में। तो मतलब सब लोग सुन भी रहे थे, सब लोग का मैं भी सुन रहा था अच्छे से, मतलब मैं भी लिसनिंग कर रहा था। तो फैक्ट्स के साथ बात करना वो मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहा मेरे इंटरव्यू में, कि हर जगह पे मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा था। और वो मतलब मेरी एक डायरी मेंटेन थी, मतलब मैं जब से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था, मैं जॉट डाउन करता रहता था कि ये चल रहा है देश में, ये चल रहा है। बाकी ग्रुप डिस्कशंस मैंने काफ़ी करे थे, जैसे कि मैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस के साथ ज्वाइन हुआ था लगभग आज से 1-1.5 महीने पहले।
तो मतलब मैं तब से कंटिन्यूस हूँ। तो 1.5 मंथ से मैं कंटिन्यूस हूँ विवेकदा के साथ, और मतलब हम लोग रात को रोज़ जीडी करते थे। तो वो जीडी ने भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया, मतलब मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स काफ़ी वो जीडी में बोलता था। एंड मुझे मतलब सारे पॉइंट्स, जब मेरा जैसे मेरा पैरामिलिट्री फोर्सेस आया था मेरी लेक्चरेट, तो मुझे सारे मतलब जो जो लोग दूसरे लोग भी जो पॉइंट्स देते ना, वो भी मेरे को याद आ रहे थे कि अच्छा उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला था। तो मैंने सबको पॉइंट्स को मर्ज करके अपना पॉइंट्स मतलब वहाँ पे दिए थे। तो वो मतलब वो काफ़ी अच्छा रहा। और डेली टू डेली प्रैक्टिसिंग ऑफ जीडी लेक्चरेट, डेली टू डेली मैं कंटिन्यूस लेक्चरेट भेजता था, कंटिन्यूस जीडी करता था, और कंटिन्यूस मतलब मैं साइक टेस्ट भी देता था, लाइक वीकली मैं एक देता था। मैंने काफ़ी इम्प्रूव करा अपने साइक टेस्ट में, और इस बार का साइक टेस्ट मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। मतलब मैं आई वॉज एबल टू डू अप्रोक्सीमेटली 59 वैट एंड 47 SRTs। तो ये बट इट डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स, बट विद क्वालिटी आई वॉज एबल टू डू दीज थिंग्स। तो साइक मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। इंटरव्यू में मेरे अराउंड पूछा था, जो भी उन्होंने इंडिया के इन्फ्लुएंस में पूछा था, तो मैंने बताया था काफ़ी अच्छे से। तो मतलब करंट अफेयर्स भी उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा था कि अभी कौन से 3 प्रोजेक्ट है जो आर्मी कर रही है, आर्मी चल रहा है, मतलब आर्मी में चल रहे हैं। तो ये मुझे पता था, तो मैंने वो काफ़ी बोला। तो फिर उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने मेरे से मतलब फिर मेरे कोर्स से रिलेटेड, लाइक मैथ्स से रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी पूछा। लाइक आई वाज अ डेटा एनालिस्ट एंड एनालिसिस वगैरह वगैरह, लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑपरेशन रिसर्च। तो उन्होंने मेरे से इस फील्ड में भी काफ़ी पूछा। तो लास्ट में मैं मतलब आप लोग को कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगा इंस्टिंक्ट। तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट है, जो भी आप कर रहे हैं वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए उसको लेके, मतलब और आप वो क्यों कर रहे हैं और आपको उससे क्या फ़ायदा होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर आपको पता है और आप उस चीज़ को कर रहे हैं, देन इट्स गुड। और आपको मतलब अपना एक एनालिसिस होना चाहिए हर चीज़ में। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे मतलब आपका खुद का, ये नहीं कि आप जाके लाइक द प्रिंट वाले सर का ऐसे मतलब इनका जैसे आप अलग अलग मतलब न्यूज़ सोर्सेज का पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, लेकिन अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि ये मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और वो पॉइंट ऑफ व्यू जब आता है जब आप पढ़ते हो चीज़ों को, जब आप काफ़ी रीडिंग हैबिट रखते हो, तो वो रीडिंग हैबिट रखिए अपने अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज रखिए अपने पास। तो ये चीज़ करिए। दूसरा, रियल रहिए और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए। आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर मत करिए। मतलब अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं ना, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जिसको जहाँ पे आप लैग कर रहे हो। वरना आपका जो वहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बैठा है ना, वो भी आपको रिकमेंड ही करना चाहता है, तभी वो आपको बुला रहा है। तो याद रखिएगा, वो भी आपको रिकमेंड करना चाहता है, लेकिन आप सेल्फ पोर्ट्रे करिए और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए। अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते सर मुझे नहीं पता, भैया मुझे नहीं पता कैसे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। वो एक रीजन है, वो आप बताना नहीं चाह रहे, आप सोचना नहीं चाह रहे, दैट्स अनदर फैक्ट। बट वो चीज़ों का एनालाइज करिए, पता लगाइए कि मैं आउट हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ। और ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आपने कहीं पे मतलब बहुत गंदा कर दिया कि आप अच्छा बच्चा भी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है। वरना जो जिस बंदे के अंदर OLQs है, अगर वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें सर्टेन क्वालिटीज़ होती है जो नहीं होनी चाहिए, तो वो OLQs के साथ अगर वो चीज़ें मैच करें तो आप रिकमेंड हो जाओगे। अगर नहीं हो रहा है तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू रिकवर इट। ऑन इंग्लिश, बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक इंग्लिश मतलब एक मिथ बना हुआ है कि इंग्लिश में ही इंटरेक्शन करना है। माई इंटरव्यू वॉज लाइक 60:40, लाइक आई एम स्पीकिंग ओवर देयर, मीन्स ओवर हेयर the same way I was speaking over there. In 60:40 was my interaction with the interviewer and there was interaction. मतलब मेरे को इंटरव्यू मेरा चल रहा है, मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है। मेरे को ऐसा लगा लाइक आई एम meeting any stranger and I'm telling him about myself and I'm portraying my real self over there. And मैंने मतलब 95% मैंने अपनी इंटरव्यू में सच ही बोला था। और जो मतलब जैसे अगर आप मतलब पुश करिए, जैसे अगर आपने 18 किलोमीटर दौड़े तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ा हूँ, तो ये झूठ नहीं है, ये मतलब एक मॉडिफाइड आंसर है। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप दौड़े ही नहीं है उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ जाता हूँ सर 25 मिनट में, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इसको आप रिकवर भी नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर आप 18 किलोमीटर दौड़े हैं, मान लीजिए आप 18 किलोमीटर दौड़े हैं अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स में, 1 आवर 30 मिनट्स में, तो आप ये बोल सकते हैं सर मैं 20 मिनट्स दौड़ा था 1 आवर 30 मिनट्स में, तो ये चल सकता है। लेकिन ये नहीं चल सकता कि आप दौड़े ही नहीं है उसके बाद आप बोल रहे नहीं मैं 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ 25 मिनट में या 20 मिनट में। दिस इज एब्सोल्युटली जीरो, नल एंड वॉइड। तो इस चीज़ को आपको अपनी मतलब अपने अंदर से हटाना है। तो तीसरा, कंसिस्टेंट रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। एंड हार्डवर्क मीन्स एज पर माई सेल्फ, कंसिस्टेंट हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन पेज ऑफ। लाइक some says that consistent hard work pays off. No, it's like consistent hard work in right direction pays off. और तीसरा ये भी है कि आज हमारा दिन है, मतलब जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, तो मतलब अभी से कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ही किसी और को सुनता था, तो आज हमारा दिन है तो आपका भी दिन आएगा। तो एक पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर कि हाँ वो दिन आएगा, उसके लिए वर्क करिए, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें करिए, ऑन एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। एट लास्ट
कंसिस्टेंट रहिए, चीज़ें जो आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि हाँ ये अच्छा है, चीज़ें सजेशंस लीजिए और उस चीज़ को करिए, बस इतना करिए और सेल्फ पोर्ट्रे करिए। तो ऐसे ही कोई कोई चीज़ें आप अपनी लाइफ में करते रहिए जिससे आप मोटिवेट रहे, अपनी स्किल्स बढ़ाइए। लाइक मतलब हर चीज़ करिए अपनी लाइफ में, खेलने से लेकर इंस्ट्रूमेंट सीखिए, कुछ नया चीज़ सीखते रहिए, ग्रेजुएशन करिए, अपने मतलब जो भी चीज़ करिए उसको अच्छे से करिए बस, और कंसिस्टेंट रहिए अपनी अप्रोच को लेके, एंड श्योरली यू विल बी गेटिंग योर प्लस sign surely in a short span of time. Thank you. About my journey with Target Defense Forces, I came to know about Target Defense Forces from AIR1 Himanshu Pandey, who is one of my neighbors, and he told me about Target Defense Forces, and I interacted with Vivek Da and told him about myself, and I was very continuous with all the things, with all the procedures, and like lecturate, GD, news sending, and all the things. And there I met Purab and other friends also, like Purab, Ankita, Meenakshi ma'am, and निधि मैम, दे ऑल सपोर्टेड मी वेल। लाइक मैं उनसे भी मतलब काफ़ी इंटरेक्शन करता था कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ, तो वो अप्रोच मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो पूरब ने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि ये स्टोरी मतलब तुम ये थोड़ा और एक्शन डाल सकते हो, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आई इम्प्रूव माई सेल्फ अ लॉट। मैं इन स्टार्टिंग ऑफ माई दिस इंटरव्यू सेशन आई वॉज लाइक मोर वर्बोस काइंड ऑफ इन नेचर। सो मैं क्या करता था, मैं डेली वीडियोस रिकॉर्ड करता था, अपने से ही खुद क्वेश्चन पूछता था और खुद ही आंसर करता था, और मैं सर को मतलब विवेक दा को सेंड करता था। देन ही टोल्ड मी दैट कि कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, जो मेरे आंसर 8-8 मिनट के होते थे, देन आई रिफ्रेम्ड इट इन 1 minute, and I did my interview schedule with him, and by stage wise, like PIQ first page, PIQ second page, then whole interview in grilling manner, and then whole interview in very peace manner। तो ऐसे ऐसे करके मैंने काफ़ी इंटरव्यू शेड्यूल करवाए सर से अपने, और ऐसे करके मैं आगे प्रोसीड हुआ। साइक में काफ़ी डिस्कस करता था और लोगों से, मतलब अपनी साइक को मैं बताता था, फिर मैं सजेशंस देता था कि और क्या एक्शंस हो सकते हैं। पूरब ने मेरे को उस पॉइंट में काफ़ी हेल्प करा, और मैं मतलब औरों के लाइक इन GD ऑल्सो, like when Meenakshi ma'am or someone is giving some points, so I will listen to them quite sincerely, and try to adapt that knowledge also. So that helped me a lot in developing my lecturate and these all things. So finally, and I thank the whole Target Defense Forces team, as well as my friends over there, Purab, Nidhi, and Ankita, Meenakshi ma'am, and all others like who are serving ACC also, Mohan Bhaiya. So they all tell me about all the things, like ACC one tell me about the weapons and these all things. तो all of you very very thank you for the journey, thank you। तो वो एक कहावत नहीं होती थी, जड़ मत होत सुदान, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। तो ऐसे ही एक मतलब एक अप्रोच रखिए अपने अंदर। मैं लास्ट में एक पोएम बोलना चाहूँगा, जो मैंने मतलब जब मैं लास्ट कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तो मैंने वो पोएम लिखी थी, उसका मैं एक मतलब 2-3 लाइन बोलूँगा। राहें ऐसी है जिनकी मंजिल ही नहीं, पर मैं उनमें खोया हूँ कहीं, जो सपना मैंने देखा था कभी वो पूरा होने का नाम लेगा तो कभी, जिस पथ में है सफलता की कमी उस पथ में ढूंढता हूँ सफलता की छवि, दिल टूट के कहता है अभी रुक जा और दूसरा पथ देख तू तो अभी, मन है कि मानता ही नहीं, कुछ और पथ पर जाने की इजाज़त देता ही नहीं, बुद्धि के कहने से ही सही, कोशिश करने का जुनून मुझ में है सही, आज नकुल विश में हूँ सही, परंतु जेंटलमैन कैडेट नकुल विश में बनूंगा तो कभी।